everyone. Welcome back to our YouTube channel Agri Addict. I'm your mentor Aripesar. So today we have All India 22nd ranker in the ICRPG exams of 2024 in the subject of agronomy. His name is Nikhil. So Nikhil, I welcome you to this session. So Nikhil is here to share his valuable journey about how he has prepared for this agronomy subjects for ICRPG exam, and he will be also giving you the complete details about the list of books that he has referred, the different sources, and also about the entire preparation strategy that he has followed. So I'm pretty much excited to know about your preparation strategy. And first of all, thank you so much for sparing your valuable time in attending this session with a with the concern to the students. Like the students will be getting a lot more benefit from this particular video where you will be sharing your valuable journey. So, Nikhil, before we proceed, please introduce yourself. Thank you, sir. My name is Nikhil and I am from Palumpur, Himachal Pradesh. I have completed my undergraduation from CSK Himachal Pradesh Agriculture University, Palumpur, and I have appeared for the ICR PG Agronomy exam and I got 22nd rank in agronomy with 247 marks, and I have been allotted to CSK Himachal Pradesh Agriculture University, Palumpur. Okay. So the All India 22 rank is a general rank, right? Yes, sir. And Yeah. sir, category rank is 11 in Okay. OBC. OBC category. Okay. The OBC rank is 11. Fine. Yes, sir. जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था तुम्हारा CGPA 6.7 है. Like, is it very common there or you have secured a less CGPA? No, sir, it's average CGPA, like the highest CGPA in lines of 8.4 to 8.5. ओके इट्स 8.4 to 8.5 बिकॉज यहाँ Yes, पे sir. तो मैं लाइक जहाँ मैंने पढ़ा है वहाँ से तो लाइक ऑलमोस्ट 9.1 इज द हाईएस्ट दैट गोस एंड आई टू secured around 7.2 in my UG though, so that's why I asked. Okay. Okay, fine. So congratulations again on securing the 22nd rank and getting allotted to same universities where you have done your UG, and I Thank guess you, sir. like it was your by choice that you have given the same, you wanted the same university. Yes, sir. Yeah. Okay. So what were the other options that you kept in your counseling before this Palampur? Sir, I have kept IIWBR Karnal, Okay. and in the first option it's New Delhi, and in second option Karnal, and in third my CSK Himachal Pradesh University. Okay. Yes, sir. So fine. Thank you. So let us know about you, like how you are prepared and what was the motive behind it. So first of all, जैसे बताओ कि तुमने MSc का के लिए क्यों मन बना लिया था, कि तुमने कैसे डिसाइड किया कि तुम्हें MSc करना है? सर, ये सब कुछ जो था ये प्री प्लान था। लाइक हम्म, सेकेंड ईयर से ही जो था कि मेरा मन था कि स्टेट सर्विसेज का एग्जाम देना है। तो उसमें जब मैंने ऑप्शनल के लिए चूज किया तो मैंने एग्रीकल्चर जब देखा तो उसमें मोस्टली जो था वो एग्रोनॉमी था। मीन्स एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम्म, आई फील, और मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से भी हूँ, तो मेरे को जो है वो एग्रोनॉमी जो है काफी ज्यादा मतलब स्कोरिंग लगा। सो हम्म। आई जस्ट चूज एग्रोनॉमी। तो जैसे कि तुमने बताया कि नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, इसका मतलब वही है कि तुमने मैथ्स को ज्यादा प्रिफरेंस दिया था जिस, यस सर, आई एम फ्रॉम द मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। जैसे तुम्हारा पढ़ाई मतलब बायोलॉजी में भी होता है ना, लाइक 11th 12th में ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी पूरा सब्जेक्ट रहेगा ही नहीं रहेगा? नो सर, इट्स PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। बायो इज टिल 10th ओनली। ओके इट्स स्टिल 10th। यस सर। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लाइक इट्स PCMB कंपलसरी फॉर ऑल 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। ओके। जो स्टेट एंट्रेंस देते हैं इसके बाद जो, जैसे कि मेडिकल वाला एंट्रेंस, इंजीनियरिंग वाला एंट्रेंस जो भी होता है, वहाँ पे लाइक वी हैव टू चूज आइदर PCM और PCB. Like ओके। if we are interested in medical, then we have to choose PCB, or if we are interested in engineering, then we have to choose PCM. So that is only for the entrance exam that we have to crack after 12th. But for 11th and 12th, so both the subjects are compulsory for us. So this is something very much different from my state, like Karnataka, to your state. Yeah. ओके सर। Okay. So fine. Like MSc तो हो गया. Like agronomy, this is because of the reason that you wanted to go for state like state government exams. Like you were targeting for these exams, and यस सर। agronomy subjects you found it as like more relevant for you to prepare. So that's how like you have decided to prepare for MSc agronomy. Okay, that's यस nice. सर। So एंड ऑल्सो सर, start. आई एम गेटिंग द टाइम, Okay. like 2 years. I am at home so I can prepare better from here. So one more thing, like the follow.
The universities that you have allotted to, it's very near to your home. Yes, sir. It's Okay. hardly 15 to 20 minutes from my home, so I Oh, prefer here. so that's why And you agronomy department is also very good there. okay, very good and lenient for you because you wanted Yes, sir. some personal time to prepare for the other exams. Yes, sir. Okay, so you are already pretty much decided about what you have to do, like because ऐसा होता है कि most of the students like including me, like we don't have any idea like once when we come into MSc, only coming into MSc, getting allotted, getting admission, we try to explore the things, and after some time we'll get some ideas. But it's pretty good that you have been already decided that what you have to pursue, and you are already moving in that direction. That is very nice to hear. ओके, सो तुमने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया था? प्रिपरेशन का जर्नी कैसा था इसका? सर मैंने प्रिपरेशन जो है सेकेंड ईयर से मैंने सोच लिया था कि मेरे को एग्रोनॉमी सब्जेक्ट लेना है। ओके। क्योंकि एग्रोनॉमी के जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे तो मैं उनको सोल्व कर पा रहा था, लाइक उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह थे। तो मैं मैथ्स लवर हूँ, सो दैट्स वाई एग्रोनॉमी जो था मेरा पहली प्रेफरेंस थी। फिर मैंने साथ साथ जो बाकी सब्जेक्ट्स थे वो भी देखे थे, उनकी भी थोड़ी थोड़ी तैयारी करी थी। बट आई फाउंड एग्रोनॉमी मच बेटर। देन सेकेंड ईयर से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, बट वो इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी। सो जो मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन थी वो मेरे थर्ड ईयर सेकेंड सेम से जो एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट स्टार्ट हुई। देन फोर्थ ईयर में रावेव था, तो उधर भी अच्छी प्रिपरेशन हो गई। देन ईएलपी था, तो उसमें भी बेटर हो गया सब कुछ। इट्स ऑलमोस्ट 1.5 year. यस सर। सर कंसिस्टेंटली जो था वो वन ईयर ही बोल सकते हैं। ओके, इट्स यस 1 year, सर। like that is how you are started. यस सर। So, चलो ठीक है, तो बुक्स के बारे में जानते हैं कि तुमने क्या कौन कौन से बुक्स रेफर किए थे और क्या क्या सोर्सेस तुमने पढ़ा था इसके लिए. सो आई जस्ट कीप मूविंग द स्लाइड्स, यू कैन जस्ट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. यस सर। सो एग्रोनमी जो है वो खुद में जो है एक होल सब्जेक्ट है, जिसमें कि बाकी सब्जेक्ट भी आ जाएंगे हमारे। सो इसमें टोटल 9 यूनिट्स होती हैं। तो 9 यूनिट्स में फर्स्ट हमारी जर्नल एग्रीकल्चर है, जो कि सभी सब्जेक्ट्स में क्या कॉमन ही है। देन सेकेंड यूनिट में हमारे एग्रोनॉमी के प्रिंसिपल्स हैं। थर्ड में फील्ड क्रॉप्स के बारे में है। फोर्थ में वीड मैनेजमेंट, देन वाटर मैनेजमेंट। देन सिक्स्थ में है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल का भी जो अब इसमें काफी ज्यादा पोर्शन आ रहा है, लाइक पहले जो इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, बट अब सॉइल एंड वाटर से जो है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ में न्यूमेरिकल्स भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। देन ड्राई लैंड एग्रोनॉमी का है। देन प्रॉब्लम सॉइल्स, अगेन सॉइल का पोर्शन आ गया। देन नाइन्थ में मिसलेनियस बोल सकते हैं इसको, इससे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। एंड लास्ट वन जो मैंने खुद से एक किया है वो न्यूमेरिकल्स है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक पहले जो था वो 15 तक न्यूमेरिकल्स आ जा रहे थे, लेकिन अब थोड़े कम हो रहे हैं, बट फिर भी अच्छे उसमें आ रहे हैं, लाइक वाटर से आ जा रहे हैं, सॉइल से आ रहे हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो ये जो है वो एग्रोनॉमी की आप बोल सकते हैं 3 बुक्स हैं, जो कि हर एक जेआरएफ एस्पिरेंट जो है, जो भी एग्रोनॉमी में तैयारी कर रहा है, उसके पास होनी ही चाहिए। सो फर्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी। सेकंड इज द सेम प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय एस आर रेड्डी। एंड द थर्ड वन जो कि आप बोल सकते हैं इन दोनों बुक्स का, फर्स्ट और सेकंड बुक्स का एक कंपाइल्ड और कंसाइज फॉर्म है, जो एग्रोनॉमी फैक्ट्स फॉर कंपटीशन बाय आर एस मीना। तो ये 3 बुक्स अगर आपके पास लाइक बहुत कम टाइम है, तो आप इन 3 बुक्स से ही प्रिपेयर करके जो है काफी अच्छा रैंक ला सकते हैं। सो हेयर टॉपिक्स कवरेज में, जैसे इन 3 बुक से आप कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से कवर कर सकते हैं, लाइक यूनिट 2 जिसमें हमारे प्रिंसिपल्स एग्रोनॉमी के। देन यूनिट 5, यूनिट 6 जिसमें वाटर एंड सॉइल का पोर्शन भी आ जाएगा। देन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का जो पोर्शन आता है वो भी काफी ज्यादा और फिक्स पैटर्न में क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी से मोस्टली जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, उसमें उनके क्वेश्चंस आते हैं, लाइक मैच इट में क्वेश्चन आ जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्वेश्चंस आते हैं, इसमें मोस्टली असर्शन रीजंस टाइप के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि काफी जर्नल भी हैं और आप सोल्व कर सकते हैं इजिली। देन नेक्स्ट इज द प्रिसीजन फार्मिंग। इसमें भी जो है अब जो है वो स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो प्रिसीजन फार्मिंग के लिए एज सच कोई स्पेसिफाइड बुक नहीं है, इसको आप मतलब सभी बुक से कंबाइंड करके और इंटरनेट से आप कर सकते हैं। देन रोल ऑफ जीपीएस एंड जीआईएस जो है वो भी, इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो ये अब हमारी थर्ड यूनिट फील्ड क्रॉप्स के बारे में। तो फील्ड क्रॉप्स में ऐसे जो अब क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो अब ऐसे है कि वैरायटीज पे क्वेश्चंस पूछते हैं, जो कि अगर
हमें हमारी अगर रिमेम्बरेंस पावर अच्छी है तो हम उसको कर सकते हैं। बट फील्ड क्रॉप से अब क्वेश्चन जो काफ़ी कम आ रहे हैं। लाइक हम एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, लाइक चिकपी से पूछ लिया, उसके बारे में आपको 5-6 स्टेटमेंट दे देंगे और आपको वो सोल्व करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है फील्ड क्रॉप से। तो अगर फील्ड क्रॉप्स का अगर लास्ट में भी करते हो तो भी ठीक है। और फील्ड क्रॉप्स के लिए काफ़ी बड़ी बुक्स हैं, लाइक ये राजेंद्र प्रसाद की बुक्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। अगर आपके पास इनफ टाइम है, लाइक सेकेंड ईयर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, थर्ड ईयर से कर रहे हो, तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। अदरवाइज फॉर द बेटर, मतलब मेरे हिसाब से जो है आर एस मीना बुक जो सफिशिएंट है फॉर द जीआरएफ एस्पिरेंट। एंड फॉर एसआरएफ यू कैन चूज दीज आल्सो, राजेंद्र प्रसाद बुक्स। सो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नेक्स्ट इज अ वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट जो है इससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, लाइक 10 to 15 क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। लाइक वीड मैनेजमेंट में इस न्यूमेरिकल्स भी, लाइक इस बार तो शायद कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है हर्बिसाइड का, लेकिन पिछले जो जो भी हमारे पेपर्स है उनमें हर्बिसाइड का एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो वेट मैनेजमेंट के लिए दो बुक्स हैं, ओपी गुप्ता की एंड टी के दास सर की। सो ओपी गुप्ता मैंने जो प्रेफर करी थी वो टी के दास सर की जो बुक थी वो करी थी। एंड आर एस मीना सर की बुक से मैंने रिवीजन करी थी। तो इन दोनों बुक से आप कोई भी एक बुक चूज कर सकते हो। मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप टी के दास चूज करिए। ये इजी भी है, लैंग्वेज भी इजी है, थोड़ी बल्की बुक है, बट आपको अच्छा एक इनफ नॉलेज मिल जाएगी इस बुक से। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है हमारे क्रॉप वीड कंपटीशन, एलिलोपैथी, वीड डिस्पर्जल। लाइक वीड डिस्पर्जल में जो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन आया था वही 2-3 बार रिपीट हो रहा है, तो इससे भी आप कर सकते हो। देन स्पेशल एंड प्रॉब्लमेटिक वीड्स हैं। ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर्बिसाइड के सारे क्वेश्चंस जो भी मैचिट वगैरह आते हैं वो ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन से आ रहे हैं। हर्बिसाइड के जो न्यूमेरिकल्स हैं, लाइक इस बार तो कोई नहीं आया था लेकिन पिछले टाइम में काफी सारे न्यूमेरिकल्स आए हैं। सो एक न्यूमेरिकल जो है वो हर्बिसाइड से आता ही आता है। तो इसको आप न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग बुक है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीड साइंस के अगर आपको हर्बिसाइड के अलावा जो पोर्शन चाहिए वो टी के दास से कवर कर सकते हैं। और अगर हर्बिसाइड का पोर्शन कवर करना है क्लासिफिकेशन वगैरह, उसके लिए आप आर एस मीना को प्रेफर कर सकते हैं। उसमें काफी कंसाइज वे में दिया है, जो कि उतना ही नीडेड है जितना हमें चाहिए जेआरएफ में। नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट इज द वाटर मैनेजमेंट। सो वाटर मैनेजमेंट का जो पोर्शन है काफी ज्यादा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। लाइक वाटर मैनेजमेंट काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और सॉइल एंड वाटर से जो है वो कंबाइंड करके जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सॉइल वाटर रिलेशनशिप से। इंडिया का जो वाटर बजट है, लाइक करंट जो भी डाटा है उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट से जो है वो हर साल क्वेश्चन आता है, लाइक टेंशियोमीटर एंड ऑल। सभी ये जो इंस्ट्रूमेंट है 4-5 जो मॉइस्चर एस्टिमेशन के लिए, इनसे एक एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज फिक्स्ड। लाइक देन साइंटिफिक कन्वर्जन्स हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लाइक पीपीएम को के परसेंट में कन्वर्ट करना, लाइक न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया ये तो इसके लिए बुक इरिगेशन एग्रोनमी बाय एस आर रेड्डी ये हम प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर वही बात है कि अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आर एस मीना से भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। और रेड्डी एंड एस आर रेड्डी तो मस्ट हैं, ये तो आपने पढ़नी ही पढ़नी है। और पी वाई क्यूज अगर जितने ज़्यादा सोल्व करेंगे, वेदर वो जिसे चाहे वो जेआरएफ के हैं चाहे एसआरएफ के हैं, तो पी वाई क्यूज जो है आप दोनों से, अगर आप दोनों एग्जाम से करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है, कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो लैकिंग है, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सो इसके लिए बुक यही है, इरिगेशन एग्रोनमी, एंड बाकी एरसमीना से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल पोर्शन। सॉइल पोर्शन से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस है। सॉइल पोर्शन के लिए भी काफी ज्यादा बुक्स हैं, लाइक इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस है डी के दास की, बट वो मैंने इधर मेंशन नहीं करी है क्योंकि वो सॉइल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो अच्छी है। या फिर किसी के पास ज्यादा टाइम है, लाइक सेकेंड ईयर से वो तैयारी कर रहा है, तो वो भी उस बुक को प्रेफर कर सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग एग्रोनॉमी स्टूडेंट्स के लिए सॉइल साइंस डिटाइज इज लाइक लाइक ये जो बुक है इसमें आपको पूरा उसका कंसाइज वर्जन मिल जाएगा। एंड जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो भी सोल साइंस में पूछी जा रही हैं क्वेश्चन, वो इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन जो इससे भी पूछ लिए जाते हैं। और सॉइल साइंस का पोर्शन सबसे पहले हम इससे करेंगे, सॉइल साइंस ट्रीटाइज से। और देन उसके बाद आर एस मीना में जो दिया है उससे करेंगे। आर एस मीना की एक खास बात ये है कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं एग्जैक्टली उससे ही उठा के, लाइक वही सेम लाइन उठा के जो है
क्वेश्चंस पूछ ले रहे हैं एग्जैक्ट लाइक, तो आर एस मीना तो मस्ट है, और इसके साथ सॉइल सेंसिटाइज भी मस्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री एंड सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रॉब्लमेटिक सॉइल, जिसमें आई थिंक मैच टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक सैलाइन सॉइल उसकी ईसी कितनी है, लाइक सलाइन एल्कली आ गई, एल्कली आ गई। सो इस टाइप के क्वेश्चंस है, और थ्योरीज आ रही हैं लाइक मिशेलीज लॉ है, तो लॉ ऑफ मिनिमम एंड ऑल, तो मैच इट में आ जाता है ये। और बुक से भी क्वेश्चंस है लाइक ये बुक किसने लिखी है, तो ये क्वेश्चन उससे भी आ जाता है। देन सॉइल फिजिक्स में इतने क्वेश्चंस नहीं आए, सॉइल फर्टिलिटी जो है वो मेजर पोर्शन कैरी करती है। सर नेक्स्ट, सो दिस बुक इज फॉर न्यूमेरिकल्स, जो भी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। आई थिंक इस साल जो है वो 5 न्यूमेरिकल से 5 to 6 न्यूमेरिकल इतने ही थे। तो अमित भटनागर सर की बुक है, जो कि शायद उनका यूट्यूब चैनल भी है, जो भी जेआरएफ की तैयारी कर रहा है उसको पता ही होगा, इन एग्रोनॉमी। तो आप अमित भटनागर सर की यूट्यूब लेक्चर्स भी देख सकते हो, उन्होंने ठीक एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें स्पेशली उन्होंने न्यूमेरिकल्स ही कवर किए हैं। और डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स जो है वो अमित भटनागर सर की बुक से आ रहे हैं। लाइक पिछले ईयर भी जो न्यूमेरिकल था, मैं जब देख रहा, जब अपनी मैंने प्रिपरेशन की थी, तो तब भी जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रहे थे। तो इस बुक से आप जो न्यूमेरिकल्स पूरे तरीके से कवर कर सकते हो, लाइक आपका कोई भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। और आर एस मीना बुक में भी बीच बीच में जो है वो न्यूमेरिकल्स नहीं है लाइक हर टॉपिक के उसमें, तो उससे भी आप लास्ट में रिवीजन कर सकते हो। बट फॉर न्यूमेरिकल्स अमित भटनागर इज बेस्ट बुक। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो न्यूमेरिकल में पूछ रहे हैं, लाइक पिछले कुछ सालों से जो है ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है, लाइक पहले फर्टिलाइजर वगैरह की पूछते थे, सिंपल कन्वर्जन पूछ लेते थे, लेकिन अब जो है वो वाटर मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है, सॉइल वाटर उसमें रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा, मॉइस्चर एस्टिमेशन में, लाइक मॉइस्चर एस्टिमेशन का तो 2-3 ईयर से जो है कंटिन्यूस एक ही तरीके का वो आ रहा है कि हाँ इसका वेट इतना है इतना और हमें मॉइस्चर एस्टिमेट करना है। हर्बिसाइड से भी न्यूमेरिकल आ रहा है, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। फर्टिलाइजर से एज सच कोई डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, उसमें कन्वर्जन से आ सकता है आपको, लाइक पीपीएम को कर दो केजी पर हेक्टेयर में, लाइक उस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। और जो भी जेआरएफ जो एस्पिरेंट है वो तैयारी कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स को आप ऐसे कर सकते हो कि जो पिछले 5 to 6 ईयर के न्यूमेरिकल हैं आप उनको एक जगह कंपाइल करके, लाइक मैंने ऐसे किया था, मैंने एक जगह कंपाइल करके उन सभी को लिख लिया था और स्पेस छोड़ दी थी, ताकि मैं जो भी मैं कवर करता जा रहा था मैं उसको उधर ही सोल्व कर रहा था। तो इससे ही जो मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो कवर हो गया, इजिली कवर हो गया। और लाइक एग्रोनॉमी के बच्चे जो न्यूमेरिकल से डरते हैं, क्योंकि मोस्टली मेडिकल के भी होते हैं, नॉन मेडिकल के भी होते हैं, बट वो भी डरते हैं न्यूमेरिकल से क्योंकि उनको राइट अप्रोच नहीं पता है। तो राइट अप्रोच यही है कि आप एक बुक ले लो अमित भटनागर सर की, और अगर आप बुक नहीं ले सकते तो उनके लेक्चर्स ही अगर देख लोगे तो भी आपके न्यूमेरिकल्स में इजिली हो जाएंगे। और पी वाई क्यू सोल्व करो और न्यूमेरिकल्स विल बी डन। सो नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट इज अ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का मैंने खुद जो है, एक्चुअली मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को इतना इसका नॉलेज नहीं था प्लांट फिजियोलॉजी का। बट मैंने मैंने भी टॉपर्स के जो वीडियोस देखे थे, तो उन्होंने एलन के नोट्स मेरे को सजेस्ट करे थे। तो एलन के नोट्स कम ठीक है, अगर जिसने मेडिकल जो है वो पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए ठीक है, एलन के नोट्स इज जस्ट लाइक अ समरी। और इतना इसी लेवल का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है इन नोट्स में, एंड में क्वेश्चंस भी हैं विच आर द बेस्ट क्वेश्चंस, वैसे वैसे ही उसी तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं एग्रोनॉमी में। बट उसके लिए उससे पहले अगर जो नॉन मेडिकल का है स्पेशली मेरी तरह, तो वो क्या कर सकता है, या तो वो एनसीईआरटी बुक्स रेफर कर सकता है, लाइक उससे भी बेटर ये कर सकता है कि कोई यूट्यूब में लेक्चर्स हैं, कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट का लेक्चर आपको जो भी अच्छा लग रहा है वो आप देख सकते हैं, उससे आप प्लांट फिजियोलॉजी एटलीस्ट आप बायो 11th एंड 12th की उससे कवर करेंगे तो हो जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी भी। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें अब ये है कि ट्रेंड जो है काफी ज्यादा, लाइक पहले इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे इससे, बट अब जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक 10 to 15 क्वेश्चंस इससे भी आ जा रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल ऑर्गेनेलिज, माइटोसिस मियोसिस, मेंडेलियन जेनेटिक्स से क्वेश्चन आता है, फोटोसिंथेसिस से C3 C4 एंड इन सब से क्वेश्चंस आ रहा है, फोटो रेस्पिरेशन से भी क्वेश्चंस आ रहा है। और क्वेश्चंस भी इसमें लाइक सिंगल लाइन के तो आ ही रहे हैं, लेकिन असर्शन रीजंस में आ रहे हैं इससे। और अरुण कात्यान की बुक सर की बुक भी है, उनसे भी आप रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर।
अब हमारा मेन जो है कि हम पी वाई क्यूज कहाँ से सोल्व करें। लाइक पी वाई क्यूज के लिए एग्रोनमी में कोई वैसी बुक बनी नहीं है। जो आजकल की जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं असर्शन रीजंस के स्टेटमेंट वाइज वो सब कुछ कवर करे। लेकिन अभी रिसेंटली एक बुक आई थी, सोल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ एग्रोनमी एंड सॉइल साइंस बाय सत्यम रावत सर एंड राजन शुक्ला। तो इनकी जो बुक थी इसमें 2-3 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस थे। तो वो मतलब एग्जैक्ट जो भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे वो उन्होंने कवर किए थे। और इन्होंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में लाइक फर्स्ट चैप्टर में कुछ वाटर साइंस के जो नए नए हमारे ट्रेंड्स चले एग्रीकल्चर में वो भी मेंशन किए थे वीड मैनेजमेंट के ऊपर। तो इनकी बुक जो है वो काफ़ी अच्छी है, लाइक जो अभी रिसेंट ट्रेंड तो चले हमारे जेआरएफ में। और अगर आप कोई प्रीवियस बुक देखना चाहते हैं लाइक जिसमें बहुत ज़्यादा पुराने साल के भी हमारे पास पेपर्स हों, उसके लिए एग्रोनमी ट्रीटाइस है। सो मेरे अकॉर्डिंग एग्रोनमी ट्रीटाइस जो भी लाइक जेआरएफ की तैयारी कर रहा है वो रोज जो है इसका एक अगर एक भी पेपर लगाएगा, काफ़ी ज़्यादा पेपर्स है इसमें, तो रोज का अगर एक एक पेपर लगाते जाएंगे और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उनको हाईलाइट करते जाओ और वही रिवीजन करते जाओ, तो उससे जो है वो पी वाई क्यूज और जो पी वाई क्यूज जो है वो अच्छे से हमारे कवर अप हो जाएंगे। और जो भी आगे हमने अगर कोई टॉपिक हमें नहीं भी आता है तो हम वो टॉपिक भी इससे इजीली कवर कर सकते हैं, लाइक पी वाई क्यू सोल्व करके ही। लाइक एक्चुअल हमें टॉपिक नहीं पता है लेकिन वी कैन सोल्व। एंड इंसाइट इनटू एग्रोनमी बुक है, ये मैंने नहीं ली थी बट काफ़ी टॉपर सजेस्ट करते हैं तो मैंने इसको भी रखा है। एंड द फोर्थ बुक इज 34 years गवर्नमेंट जॉब पी वाई क्यूज। सो इसमें हमारे जर्नल एग्रीकल्चर के जो भी रिसेंट डाटा है वो इसमें प्रोवाइडेड है। और रिसेंट डाटा लाइक हमारे लाइक क्वेश्चंस इज काफ़ी इजी क्वेश्चंस आया था। लाइक 2023 को कौन से ईयर हमने लाइक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, काफ़ी इजी आंसर था। तो इस टाइप के लाइक 2024 को क्या मानना है 25 को, तो इस टाइप का जो डाटा होगा और जो भी हमारा फैक्चुअल डाटा है लाइक जीडीपी एंड ऑल्सो वो सब इसमें कवर है। और इसमें हमें टॉपिक वाइज मिलता है लाइक हर्बिसाइड से क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक जेआरएफ में ही नहीं बाकी जो भी एग्जाम्स है हमारे आईबीपीएस एफओ में क्या क्वेश्चन आया है। तो हर जो भी क्वेश्चंस है अदर एग्जाम के वो फोर्थ बुक में कवर है, जनरल एग्रीकल्चर एंड करंट अफेयर्स में बाय पीडी चौधरी। सो ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पी वाई क्यूज के लिए ये 4 बुक जो है इनफ है, इनसे आप कर सकते हैं। और रोज के रोज जो है आई थिंक पी वाई क्यूज हमें देखने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए, तभी हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। इस नेक्स्ट स्लाइड। सो जनरल एग्रीकल्चर एग्रोनमी में क्या है कि मोस्टली सारी चीज़ें जो है वो जर्नल ही है एक तरीके से देखा जाए तो मैंने इनमें से बस आर एस मीना सर की बुक पढ़ी थी। लाइक नेमरा सुन्ना बुक भी हमने पढ़ी थी लाइक स्टार्टिंग ऑफ द आवर डिग्री, उसमें पढ़ी थी लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में। तो आई थिंक अगर आप इतनी ज़्यादा बुक्स कर रहे हो तो नेमरा सुन्ना सर की बुक पढ़ने का कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है काफ़ी डीप डाउन जो नॉलेज ले चुके हो। बट फिर भी अगर इफ़ यू वांट आप जनरल एग्रीकल्चर के लिए नेमरा सुंदर सर की बुक को रेफर कर सकते हैं। देन अरुण कात्यान सर की बुक्स भी थी मेरे पास, बट इसमें से भी मैंने ज़्यादा पोर्शन ही मैंने एग्रोनमी का सॉइल साइंस एक्सटेंशन इतना ही पढ़ा था और इतना ही इनफ होता है। लाइक हम इतनी बल्कि बल्कि बुक्स पढ़ रहे हैं, अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो इन बुक्स को करने का लाइक कोई फायदा नहीं है। बट फिर भी आप जनरल एग्रीकल्चर के लिए कर सकते हो। बट आर एस मीना इज द बुक जो कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इट्स लाइक द नॉवल फॉर द जेआरएफ स्टूडेंट्स। तो ये आपको पूरी करनी है और इसका नया एडिशन आया है, काइंडली वो परचेज करें सर। so this is all the set of the books. I think 15 books are there. so 15 की 15 अगर जिसको इन डेप्थ एग्रोनमी में नॉलेज लेनी है तो वो 15 की 15 को रेफर कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास लाइक एक साल है, इतना ही टाइम है, 6 मंथ्स है, तो वो फर्स्ट टू 8 बुक्स जो हैं जो मैंने मेंशन करी हैं वो लें। जिसके बाद उससे भी ज़्यादा कम टाइम है वो 1 2 3 बुक लें। जिसके बाद थोड़ा ज़्यादा है लाइक 5 4 5 मंथ्स, वो 5 तक बुक्स ले सकता है, 1 2 3 4 5। मैंने एक सीरीज में लाइक उसी पैटर्न में अरेंज करी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक किसी अगर कोई लास्ट एंड मोमेंट में तैयारी कर रहा है तो वो एक बुक से भी कर सकता है और कुछ पीवाईक्यू सोल्व करके भी उससे भी लाइक अच्छा लाया जा सकता है अगर उसने डिग्री में भी अच्छा किया है। लेकिन जिसके पास सफिशिएंट टाइम है वो सारी बुक्स लें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। सो दैट्स ऑल अबाउट द बुक सेक्शन। ओके निखिल, आई आई शुड रियली अप्रिशिएट यू, लाइक तुमने काफ़ी अच्छे से
पीपीटी तैयार किया है और कॉम्प्रिहेंसिवली गाइड करने का जो तरीका तुमने सोचा है बहुत ही बढ़िया है। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला होगा टॉपिक वाइज भी। जो भी बुक्स तुमने रेफर किया था उसमें भी क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल इंसाइट्स तुमने दिया है। लाइक कंसिडरिंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स, लाइक जो भी बहुत जिनके पास बहुत सारा टाइम है, जिनके पास टाइम बहुत कम है, जिनके पास लाइक सब लाइक मॉडरेट अमाउंट ऑफ टाइम है, लाइक सारा डिफरेंट कैटेगरीज को इन्वॉल्व करके तुमने अच्छा खासा उनको एड्रेस किया। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ तुमने सही से लिस्ट भी बनाया कि टॉप फ्रॉम द टॉप टू बॉटम द अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी लिस्ट विच स्टूडेंट्स कैन इजीली डिसाइड कि उनको कौन से बुक्स को रेफर करना चाहिए और कितने बुक्स के रेफर करना चाहिए। और यस सर। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन तुमने दिया है वो इन डिटेल था। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड जो भी तुमने बताया इस वीडियो में। आई होप लाइक द स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। और स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई भी डाउट रहेगा, लाइक यू कैन जस्ट comment on this video, so Nikhil will be here and he will be able to reply all your queries and solve all your doubts. Okay. एंड वन मोर थिंग सर, Yes, yes. रिवीजन ऑफ द बुक्स इज मस्ट। लाइक Hmm. ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ हमने एक बार एक बुक पढ़ ली, कवर कर ली, लाइक हम उसको मान लेंगे कि कवर्ड है। लाइक एग्रोनॉमी में यही है, मल्टीपल रिवीजन जितनी ज्यादा करोगे जितना आपको मेमोराइज रहेंगी चीजें, क्योंकि क्वेश्चंस वैसे आ रहे हैं, लाइक फैक्चुअल भी हैं लेकिन कंसेप्चुअल भी हैं। तो अगर मेमोरी भी आपकी शार्प होगी, लाइक कॉन्सेप्ट अच्छा है मान लिया, लेकिन मेमोरी भी आपकी शार्प होगी तो आप इजिली जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। लाइक 3 to 4 रिवीजन तो मस्ट है इन बुक्स की। Yeah, that's very mandatory. Like कोई यस भी सर। subject हो, not only agronomy. If you are like competing for any exams, like any entrance exam or any competitive exams, like where there are very weightage for this memory-based content, then obviously like it reads repeated revision. Okay, यस सर। that's must and should for each and every subjects. Okay. निखिल, जो भी हमने डिस्कस किया अभी, जो भी इंफॉर्मेशन तुमने दिया उसको एक समराइज कर लेते हैं एक स्लाइड पे। तो फ्लो ऑफ सब्जेक्ट्स जो भी तुमने कवर किया था उसके बारे में बता देना एक बार। कि जैसे कि यस तुमने सर। 1.5 ईयर या ऑलमोस्ट 1 ईयर का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ओवरऑल, लाइक यस कहाँ सर। स्टार्ट किया था और कहाँ से एंड किया तुमने। सर फर्स्टली मैं वीक था, वीट पोर्शन में मैं काफ़ी ज़्यादा वीक था। तो मैंने जो मेरा वीकेस्ट पोर्शन था मैंने उसको ही सबसे पहले टैकल करा, उसको ही मैंने जड़ से उखाड़ दिया। तो वीट ओके। मैनेजमेंट जो था मैंने सबसे पहले वो किया था, तो इसमें भी काफ़ी लाइक 1 मंथ लगा था मेरे को वीट मैनेजमेंट कवर करने के लिए। ओके। सो वीट मैनेजमेंट मेरा फर्स्ट था। देन सेकंड टॉपिक न्यूमेरिकल्स मैंने कवर किए थे। लाइक न्यूमेरिकल की मैंने एक लिस्ट बना ली थी प्रॉपर, तो ओके। न्यूमेरिकल्स मेरे उससे कवर हो गए थे। देन उसके बाद मेरा प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी चला जिसमें मैंने एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी करा। ओके। एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, देन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ओके। नेचुरल, जो हम छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे लाइक जिनमें हार्डली 1 या 2 डेज लगते हैं जिनको कवर करने के लिए, मैंने वो सबसे पहले कवर किए। देन कमिंग टू द बिगर टॉपिक्स लाइक सॉइल एंड वाटर, सॉइल साइंस पोर्शन, इसको इसके लिए भी आई थिंक 1 to 2 months लग गए थे। सॉइल एंड वाटर, सॉइल में भी जो मेरा मेजर पोर्शन था वो सॉइल फर्टिलिटी था, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है। और वाटर में, वाटर एक्चुअली जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इसमें सारे, तो इसका मैंने पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करी थी, डिफरेंट यूट्यूब वीडियोस भी देखे थे और बुक से भी प्रिपरेशन करी थी। ओके। देन नेक्स्ट इज ड्राई लैंड एग्रोनमी एंड ड्राई लैंड, इससे भी जो है सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। लाइक आपने इसको एक बार कवर कर लिया तो यू कैन इजिली, लाइक एंटी ट्रांसपेरेंट से क्वेश्चन आ गए, स्टोमेटा क्लोजिंग एंड ऑल। सो इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने एक बार पढ़ लिया इसको तो कर सकते हैं। देन आई थिंक हाँ एट लास्ट जो मैंने फील्ड क्रॉप्स करी थी, फील्ड ओके। क्रॉप्स, फील्ड क्रॉप्स एक्चुअली मैंने सेकेंड ईयर में भी करी थी और लास्ट में भी करी थी, तो इन बिटवीन मैंने ज्यादा फील्ड क्रॉप्स को प्रेफरेंस नहीं दी थी। ओके। सो एंड आई आफ्टर दिस थिंक जनरल एग्रीकल्चर। यस सर, जनरल एग्रीकल्चर साथ साथ में होता गया। ओके, एंड लाइक सर मोस्ट इम्पोर्टेंट सर मॉक टेस्ट, ओके। मॉक टेस्ट एक्चुअली दे हैव हेल्प मी वेरी मच। लाइक मैं लाइक वीकली जो है 1 से 2 मॉक टेस्ट में दे देता था। लाइक जो लास्ट के 6 मंथ्स बचे थे उनमें काफी ज्यादा मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं। और आई थिंक मेरा फर्स्ट मॉक टेस्ट का जो स्कोर था वो भी काफी कम था, लाइक 160 to 170।
बिकॉज मेरे को पता भी नहीं था कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ क्या क्या पढ़ना है। तो मॉक टेस्ट, और एक अच्छे प्लेटफॉर्म से अगर आप मॉक टेस्ट लो तो उसका भी फायदा है। लाइक कुछ प्लेटफॉर्म जो है वो ऐसे करेंगे, हाँ आपको सिंगल लाइन के मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बट एक्चुअली वो वर्थ इट नहीं होगा, फिर वो फैक्चुअली रह जाएगा, आपका पूरा कंसेप्चुअल नहीं बिल्ड होगा। तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं। Yeah, लाइक मैंने exactly. एग्री एडिट के अभी रिसेंटली मॉक टेस्ट देखे हैं, प्रिपेयर भी करे हैं खुद। तो Mm. एग्री एडिट के काफी अच्छे मॉक टेस्ट हैं, और अदर प्लेटफॉर्म जिन पे आप ट्रस्ट है वो भी आप ले सकते हैं। Yes, obviously. Like, see, it's all about the preparation. तो कोई भी कर ही लेगा, लेकिन अगर mock test attend करना है, it's very pretty obvious that you choose a platform where you get a very standard set of questions. उसके यस। लिए तुम सीनियर से पूछो या कोई एक दो mock test attend भी कर लोगे तो पता भी चल जाए कि क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से तुम डिसाइड कर सकते हो क्या mock test कहाँ से लेना है. But यस सर। attending mock test becomes very much important. It's a mandatory part of preparation. यस सर, इट्स अबाउट सर 70% जो आपकी प्रिपरेशन है वो फिर इससे मॉक टेस्ट से ही हो सकती है। अगर आपने लाइक 50 और 60% सिलेबस भी कंप्लीट किया है, Mm. लास्ट में अगर मॉक टेस्ट ही करो तो उससे भी आपकी जो है काफी अच्छा स्कोर आ सकता है। Like up to 70% like syllabus will be covered, like यस सर, इजीली। supplementary to the okay यस सर। preparation. So next, like duration of the preparation, ऐसा तुमने बताया कि it's almost like 1 to 1.5 years, right? यस सर, 1 to 1.5 सर। Okay. So and like what is the average hours of study on an average, like daily सर, hours इट्स of नॉट study? फिक्स्ड, लाइक आई डोंट हैव सच टाइम टेबल, बट या आई हैव टास्क टेबल। Mhm. लाइक जो भी मेरे को डेली टास्क करने होते थे वो मैं लिख लेता था, और फिर जब तक वो टास्क नहीं हो जाते तब तक लाइक रात तक चाहे जितना टाइम लग जाए उनको कवर करता था। तो Okay. एवरेज आवर्स लाइक इंक्लूडिंग माय यूजी, Mhm. डेली 6 to 7 hours यू कैन से। Okay, 6 to 7 hours. For example, like during the week of exam or during the month of the exams, like यस सर। is it changed or it is same as यस it? सर, इट्स इंक्रीज सर। Okay. Like यस next सर, month इट्स में तो लास्ट मंथ में जितना कितना था ऑन एन एवरेज? सर इट्स अबाउट 10 to 12। ओके, इट इज 10 to 12 hours पर डे फॉर अ लास्ट मंथ. Yes, sir, because I am also attending like mock test, and फिर उनकी एनालिसिस करनी, लाइक कहाँ गलती हो रही है, फिर वो टॉपिक दोबारा ब्रश अप करना। सो 10 to 12 hours सर। एंड ओके. सर क्योंकि हॉलीडेज थी हमें उस टाइम, क्योंकि हमारी डिग्री हो गई थी, तो वी गॉट सफिशिएंट टाइम। गॉट अ गुड एडवांटेज. यस सर। ओके. सो लास्ट एक और क्वेश्चन है कि जो कोई एक सब्जेक्ट है ऐसा कि को डिफिकल्ट लगा था तुम्हें इस वाले प्रिपरेशन में? यस सर, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, लाइक आई एम नॉन मेडिकल स्टूडेंट। सो ओके. मेरे को लाइक मेडिकल की जो चीज़ें थी, लाइक प्लांट फिजियोलॉजी था, लाइक उसमें C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये हमने नहीं पढ़ी थी 11th 12th में, और 10th तक तो ऐसा कुछ था भी नहीं। तो मेरे को प्लांट फिजियोलॉजी पर्सनली काफ़ी डिफिकल्ट लगा। फिर मैंने यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू, देन बुक्स एंड नोट्स के थ्रू उसको कवर अप किया। Okay. Okay, that's how you are prepared for it. So apart from that, everything was okay. Like you have just followed the things from the books and you have analyzed the previous year question papers. You attended the mock test, and that is how you are prepared for this subject from the यस। scratch. Okay, that's nice. So I guess like the जो भी information like you wanted to give and students were willing to take, we have discussed each and everything sufficiently. So I'm also very much happy that you are a part of Agreed now and यस सर, थैंक यू। yeah, providing the valuable lectures and also like you'll be contributing like giving contributing in one or the other way to this platform. So students, like if you're not aware about our courses, like we have 6 different courses for the ICR PG exams, and like the subjects are plant sciences, entomology, agronomy, soil science, horticulture, social science. So you are, if you are interested and if you are willing to get a comprehensive guidance starting from the scratch, which covers the full content of the syllabus in a very good manner starting to end with the good quality classes, mock test, study materials, and the previous year discussions, and also like one-to-one mentorship. So you can always opt our courses. Like we have 2 different courses like Shrestha and Samartha. Shrestha is for 2025 batch and Samartha is for 2026 batch who are willing to write the exam in the year of 2026. That is for third year BSc agriculture student. So if you are interested to enroll to our courses, you can just download our Android mobile application or the from the iOS, and you can enroll from there. And if you have any queries related to our courses, you can always contact on the below displayed WhatsApp number,
And if you have any other questions to Nikhil, you can always comment on this video. So Nikhil will be very happy to assist you people. Okay, Nikhil, thank you so much for your valuable time. I hope You're welcome, sir. students have enjoyed this video. Thank you so much. Okay, thank you, sir.